अच्छा, मेरा घर G15 में है। माशाल्लाह। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में ना, चैप्टर नंबर 2 में इट्स ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2, मैं बुक से ही बिल्कुल एग्जैक्ट जो बुक कर रही है मैं उसी को ही फॉलो करूंगा। ठीक है। तो बैक एंड पे बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 2, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक्स। सो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहानी स्टार्ट होती है लीनियर इक्वेशन से। लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि फाइंड x इफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हो? आप सिंपली x को बनाते हो सब्जेक्ट। सो यू ब्रिंग 1 ऑन द अदर साइड, 5 माइनस 1, सो 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब ये तो थी आपकी लीनियर इक्वेशन। बट व्हेन द पावर ऑफ x बिकम्स 2, okay, this is known as a quadratic equation. Okay, this equation is known as quadratic equation. अब quadratic equation को solve कैसे करते हैं? There are three methods. So to solve a quadratic equation, to solve ax square plus bx plus c, there are three methods. Okay, method number one, सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहले दोनों से आप ओ लेवल्स में फेमिलियर होते हो, ऑल्दो कि थर्ड वाला भी होता है, लेकिन ए लेवल्स में थर्ड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जांपल। सॉल्व ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो व्हेन आई से फैक्टराइजेशन, आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। मिडिल टर्म ब्रेक करनी है आपने। सो एक्स स्क्वायर, -5 और +3। वेरी गुड, आपने मुझे बताना है साथ साथ। -5 प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। टेक x कॉमन, तो x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन टेक x माइनस 5 कॉमन, so inside is x plus 3, so x minus 5 equal to 0, x plus 3 equal to 0, x is equals to 5, x is equals to minus 3. So these are the two solutions for above equation. Question 2. X square is equals to 9x. Find x. तो अब इसको कैसे करते हैं? लेट मी टेल यू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना इसको यूं करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x है, तो मे बी दे कैंसल आउट x विद x, so x is equals to 9.
Let me tell you, this is wrong. Okay, this is wrong attempt. आपने ऐसा नहीं करना. आप क्या करोगे? You bring 9x on the other side, and then you take x common. So x is equal to 0, and x minus 9 equal to 0. So x is equals to 9. So these are the two values of x. ठीक है? Next. 6x square. उमर मुझे इसके फैक्टर्स बताएं. 6x square plus 13x minus 5 equal to 0. So 5 6 are 30. 30 और 13 बनाना है. So what should I do? The 10 over 3 minus 10 minus 3. ये कैसे हो सकता है? -10 नहीं minus 10 3 और 15 2. अच्छा 15 2 I 15 think 2 15 2 will work. 15 और minus Now take 3x common. So 3x common into 2x plus 5 minus 1 common 2x plus 5 equal to 0. So 3x minus 1 into 2x plus 5 equal to 0. So 3x minus 1 equal to 0. 2x plus 5 equal to 0. X will be 1 over 3. So x will be minus 5 over 2. So this was your factorization method, finding values of x using factorization. Next, find x. If 2x minus 3 whole square is equals to 25. अच्छा, अगर मैं इससे पहले आपसे ये पूछूं कि how to solve this small equation, x square is equals to 9. So what you can do is you can take square root on both sides, and you know that whenever you take square root तो आप प्लस माइनस लगाते हो. ठीक है? So x is equals to plus minus 3. These are the values of x for this equation. तो अब आपने इस इक्वेशन को वैसे ही ट्रीट करना है. तो क्या करेंगे? इट मीन अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लेता हूं, so this square will be cancelled out. So 2x minus 3 is equals to plus minus 5. सर So अब फिर 2x. दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए सॉल्व करेंगे. Yes. We will solve it one by one. So 2x is equals to 5 plus 3, 8. X is 8 over 2, which is 4. And then 2x is equals to minus 5 plus 3 is minus 2. X is going to be minus 1. X minus 3 whole square is equals to 7. So you will take square root on both sides. X minus 3 whole square is equal to plus minus root 7. So this square will be cancelled out. X minus 3 is equals to plus minus root 7. It depends. You can either write this value in decimal, but it doesn't matter. Okay. You can also give answer in exact form. कैसे? आप इसको one by one आप लिखेंगे. एक बार root 7. The other value is x minus 3 is equals to minus root 7. So x is equals to 3 plus root 7. X is equals to 3 minus root 7. That's it.
So this was your factorization method, and exercise 2A is your homework. ठीक है, उसको आप देखें. If there is any problem, you can ask me. सर वैसे अगर अम, हम इधर ब्रैकेट्स एक्सपैंड कर देते तो फिर वो लंबा मेथड होता है या गलत हो जाता? नहीं, वो गलत ना होता. Let's say if you expand this bracket, तो maybe after some steps you have to apply some other method, either फैक्टराइजेशन होगी ना? factorization or maybe quadratic formula. ठीक है, ठीक है ना. जी सर. लेकिन ये एक स्मार्ट मूव थी ना, ये भी आपने सीखना है. जी. So exercise 2A, page 20. Next topic is quadratic formula. Quadratic formula. So x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a. So this is your quadratic formula. This is your quadratic formula. एग्जाम्पल करते हैं. Solve x square minus 5x plus 6 equal to 0 using quadratic formula. So first let's compare this equation with the standard equation. Ax square plus bx plus c equal to 0. अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को करते हो कंपेयर, तो we can see that c is going to be 6, b is going to be minus 5, and a is going to be 1. Okay, so a is 1 because the value with x square is 1, b is minus 5, c is last constant which is 6. So a is 1, b क्या है -5, और c is going to be 6. So substitute these values in above quadratic formula. ये फार्मूला आपको दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है. फार्मूला शीट के अंदर ये फार्मूला होता है. लेकिन वैसे बुद्धि भी आना चाहिए. खुद भी आना चाहिए, तो बहुत बेसिक फार्मूला है भाई. ये तो आपके माइंड में सेव होना चाहिए ना. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. सो ये आएगा जी 5 प्लस माइनस 25, 6 4s are 24, 2, 5 plus minus 25 minus 24 is 1, 1 square root is 1. So there are two values of x. So the first value is 5 plus 1 over 2, which is 3. The second value of x is 5 minus 1 over 2, which is 2. That's it. सर एग्जाम में इससे रिलेटेड मुझे हमेशा एक चीज तंग करती है कि लाइक फुल मार्क्स के लिए कितनी वर्किंग दिखानी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए. हम्म देखें, ये हमें ना इससे पहले इसका आइडिया नहीं था कि एग्जामिनर इसको किस तरह मार्क करता है. सीरियसली हमें इस बार ना शीट्स मिली है ना, जो सॉल्ट शीट्स होती है ना, या वी कैन से जो मार्क शीट्स होती है एग्जामिनर की. उसमें ये होता है कि जी. लेट्स देखें ना, ये इक्वेशन है ना, ठीक है. तो आपने पॉइंट आउट करनी है ये वैल्यूज लाजमी. ठीक है, यू विल गेट 1 मार्क फॉर दीज वैल्यूज. ठीक है ना, पॉइंटिंग आउट दीज वैल्यूज. ठीक है, फिर आप क्या ठीक करोगे, है. इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, इसका कोई मार्क नहीं है. इसको फॉर्मूले को लिखने का कोई नंबर नहीं है भाई. आप क्या करोगे, आप ये वैल्यूज इसमें पुट करते हो तो दिखाते हो उसको. इस स्टेप का एक नंबर है. ठीक है, ठीक है सर. और इससे आगे जितने भी स्टेप्स है ना, इन सारे स्टेप्स का एक नंबर है.
आपको पता है ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये नॉर्मली आता है 3 मार्क्स का ना। तो मुझे जरा मार्क्स की रिवीजन करने दे। 1 नंबर हो गया इसका। 1 नंबर सिर्फ पुट करने का है। अब आपको पता है बच्चा इसको पुट करेगा तो या तो ठीक निकालेगा या तो गलत। ठीक है, तो इस सारे स्टेप्स के ना क्या पता बच्चा एक और भी स्टेप करता है, जिससे मैंने इसके बाद मेंटली किया ना। स्टूडेंट यूं कर सकता है 5+1/2, 5 - 1/2। तो ये आएगा 6/2, ये आएगा जी 4/2, तो ये आएगा 3, ये आएगा 2। तो इन सारे स्टेप्स के कितने नंबर है? एक। ओनली 1। हाँ जी। और फिर जो लास्ट है ना, ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है, इसका है 1 नंबर। ठीक है। सर क्यों, व्हाट इफ के ये जो आपने वैल्यूज डाली है फॉर्मूला में, इस स्टेप के बाद सीधा मैं इसी चीज़ को एक दफ़ा प्लस के साथ कैलकुलेटर में पुट करूँ, मेरा आंसर 5+1/2 आएगा। और एक दफ़ा माइनस के साथ पुट करूँ, 5 - 1/2 आएगा। बस सिर्फ तो आपका एक सही नंबर होएगा ना? आपका 1 नंबर कटेगा ये वाला। क्या आपने वर्किंग अच्छा, तो शो फिर नहीं ये की? सारा दिखाना है? हाँ, बस एक एक या दो मतलब स्टेप शो कर देना, जिससे मैंने किया है। ठीक है। मतलब कि अंडर रूट जो है ना जी जी सिंप्लीफाई करना लाजमी है? जी जी, बिल्कुल करवाना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको ठीक। बता रहा हूँ सेफ एंड पे। ठीक है। तो सम टाइम ये नहीं होता, सम टाइम होता है। तो मैं स्पेशली जब मैकेनिक्स हम कर रहे होते हैं ना, मैकेनिक्स, उसमें तो बहुत केयर करनी होती है। उसमें ना बच्चे बहुत बेसिक इक्वेशंस को डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। मैकेनिक्स में तो आपने बहुत से स्टेप्स, मैथमेटिकल स्टेप्स शो करने होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो इसके जो प्रॉपर स्टेप्स हैं बस आपने भी यही करने हैं जो मैंने किए हैं। एक और करते हैं इस एग्जाम्पल। सॉल्व 3x² -7x - 1 = 0 by quadratic formula। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। So a is 3, b is -7, c is -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? -b + b² -4ac whole divided by 2a। So x is equals to minus into -7 plus -7² -4 into 3 into -1 whole divided by 2 into 3। ठीक है। एक स्टेप करेंगे उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 7 ± 49 और ये कितना बनेगा जी? +12 61 6। तो एक बार आपने लिखना है 7 + √61/2। एक बार आपने लिखना है, तो आई डोंट थिंक सो कोई को बहुत बड़ी बात है। 2 ही स्टेप्स एक्स्ट्रा करने हैं ना। ठीक है, तो इसके बाद वैल्यूज तो आपने लिखनी है ना। चैलेंज एक क्या आएगा? 7 + 61 डिवाइडेड बाय 6। ये मैंने 2 कहाँ से लिख दिए? इट इज 6। 2.468। नॉर्मली हम आंसर देते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो ये बनेगा 2.47। सो 2.47, देन द सेम वैल्यू विद नेगेटिव साइन -0.14 135, sorry। That's it. So homework is exercise 2B. Homework. It is on page 21। ये बहुत आसान है उमर, हम इसको
जो है ना फास्ट ट्रैक पे पढ़ रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज देख लें, कोई भी मसला होता है तो यू कैन डिस्कस इट विद मी, ओके। एक मैं क्वेश्चन आपको करवा ठीक देता है हूँ। सर। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन मुझे नजर आया है, दिस वन। बाकी सर इससे वैसे पहले, थोड़े से साइड नोट पे मैं बात कर लूँ। जी जी, सर वैसे जो एग्ज़ाम के अंदर जो मुझे प्रॉब्लम फेस होती है ना, वो हम्म, कभी भी लाइक क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी इसका कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ ना वो यूजुअली हमेशा सही होता है, लेकिन जिधर प्रॉब्लम आती है ना वो टाइम की होती है हमेशा। मतलब टाइम जो है अच्छा, ना बहुत लाइक उसकी वजह से ही मार्क्स लूज होते हैं मेरे मोस्टली। मुझे समझ आ गई। और ये सिर्फ आप नहीं है भाई, आप खुद को स्पेशल ना समझें, ये ए लेवल्स के बच्चों का मसला होता है। जिस तरह अभी देखे ना, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स किए थे, स्टूडेंट्स इतने जी मतलब फजूल कैलकुलेशन समटाइम कर रहे होते हैं ना, कि मेंटल मैथ्स तो बिल्कुल यूज नहीं करते ना। मतलब 25 - 24 किया है ना, तो बिलीव यू मी वो यूं करेंगे 25 - 20। ये नहीं कि उनको करना नहीं आता, उनको आता है, बट उनका पता नहीं क्या होता है, दिमाग उनका इधर चल रहा होता है, और सोच तो बिल्कुल रहे नहीं होते ना। तो 25 - 24 भी वो कैलकुलेटर से कर रहे होंगे, तो मतलब वो कैलकुलेटर में भी यूज करने में टाइम जाया करते हैं, समझ रहे हो, बेसिक चीजों में भी ना। जी। और इसका बस सर यही वैसे जवाब, मैं भी इसी तरह करता हूँ। मुझे पता है भाई, आप, मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ आप नहीं है, बहुत मतलब बच्चों के बेसिक जो मेंटल मैथ्स है, तो वो तो बच्चे यूज ही नहीं करते ना। ठीक है, इसकी वजह यही है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है, वक्त के साथ तो साथ। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लाइक कैलकुलेटर कम यूज़ करें लाइक मैं बेसिक कहता चीज़ों हूँ के लिए। हाँ जी, बिल्कुल कम यूज करें। आप मुझे बताएं ना, अ, आप मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज कहाँ होना था? नहीं होना था ना, उसके बगैर भी हो सकता था। हाँ इधर कहीं होना था। मैंने आई थिंक नहीं किया, मुझे भी लगता है मैंने भी नहीं किया शायद, हाँ। मैंने इसको -5² 25 लिखा है, 6 4 24। अब देखो ना, मैंने 25 - 24 1। बच्चों ने अगले स्टेप में ना स्क्वायर रूट डालना था, टाइम जाया करना था, तो मैंने क्या किया, 25 - 24 इज 1, √1 इज 1। थोड़ा सा मेंटल मैथ साथ आपने यूज करना है। ठीक है सर। अच्छा, लुक एट दिस क्वेश्चन 4, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2B, लास्ट पार्ट। So this trapezium has an area of this. Show that the height of the trapezium is equal to this one. So we know that the area of trapezium is 1/2 into h into a plus b. Okay. So we know that what is h, a and b. So यहाँ पे जो h है, you can see कि वो height है, ये we can say the distance between parallel sides, इसको आप h कहते हो ना, तो यहाँ पे h क्या है? टू उमर, ये आपको एक्स पता है बात? जी जी सर। So h is 2x, और a इज x, b इज x+10। और प्लीज इस बुक को ना इंपॉर्टेंस दें, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, जब आपके नसीब बुरे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अलजबरा के अंदर वो डायग्राम डाल देता है। अब ये बेसिकली अलजबरा के अंदर डायग्राम डली हुई है, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें जरा अब, कैंसल आउट। सो 50 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x+10। सो 50, हम यूं भी कर सकते हैं 2x² प्लस 10x -50। जस्ट सेव योर टाइम, और यहाँ आएगा 0, ठीक है। लेट्स डिवाइडेड बाय 2। चलिए जी, पूरी इक्वेशन को 2 में डिवाइड कर दिया। अब आई थिंक सो 25 एंड देन चैलेंज, लेट्स अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। a is 1, b is 5, c is -25। उमर, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इसमें? सर सर आई डोंट थिंक सो। ओके,
You are right. X equals to minus b plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a. So x is equals to minus 5 plus minus 5 square minus 4 into 1 into minus 25 divided by 2a. So minus 5 plus minus, अच्छा ये आएगा जी 25, 25 4s are 100, a is 1. So minus 5 plus minus 125 square root कुछ होता है. So 5 root 5 is your square root of 125. तो उसने कहा था कि आंसर आपने इस फॉर्म में देना है ना. Show that the height of the trapezium is this 5 into root 5 minus 1. तो अब देखते हैं कि हाइट का मतलब क्या है. चलो minus 5 plus 5 root 5 over 2. So there are two values of x. I hope कि ये वैल्यू आपको पता है कि this is negative. Okay, this value is negative. नेगेटिव इसका कंसिडर करेंगे ना. हाँ, इसको तो ये हम लिख रहा हूँ, मैं तो लिख देता हूँ कि ये है नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि देखें x जो है ना वो लेंथ है ना, तो x कैन नेवर बी नेगेटिव. सो आप क्या कहोगे? x इज इक्वल्स टू minus 5 plus 5 root 5 over 2, and please use this word only. So your height, which is 2x, डायग्राम के अंदर हाइट क्या थी? 2x थी ना. What was the height? The height in the diagram was 2x. Okay, so 2 टाइम x की वैल्यू पुट कर दें तो 2 will be cancel out. minus 5 plus 5 root 5. So इसको रीअरेंज कर लें, 5 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा root 5 minus 1 as required. ठीक है उमर? जी सर. सर आई थिंक जो वैसे इस किताब में लाइक असल जो लाइक जिधर कंटेंट की थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है ना वो चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स ही है. बस ठीक है, इंशाल्लाह चैप्टर 5 तक समझ लो हम पहुंच जाएंगे कोई 2 हफ्तों में. ठीक है, जी. तो ठीक है ना. चैप्टर और 5 और तक तो बेसिकली हाँ हाँ, आईजीसीएसई है. दो 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 क्लासेस हम लगाते हैं ना एक चैप्टर पे, ताकि लेट्स सपोज 4 चैप्टर्स हैं तो उसपे हम 8-10 क्लासेस, जिस तरह हम देखें ना, पहला चैप्टर हमने 2 क्लासेस में कर लिया था, और ये जी. चैप्टर नंबर 2 है, ये भी मुझे लगता है 1 या 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा. तो ठीक है, हम 8-10 क्लासेस लगा लेते हैं इन पे. ठीक है ना. जी. चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक. ये तो एक्सरसाइज 2B इज योर होमवर्क. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैं एग्जैक्टली जो बुक का पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा हूँ. Completing square, and let me tell you, this is important portion. ये important portion है. तो इसका फार्मूला क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का? एक्स प्लस. देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना. जब भी ऐसा जी. एक्सप्रेशन आता है तो इसको आप लिखना होता है, आप रट्टा मारना है इसको. ये फार्मूला दिया नहीं होता, ठीक है ना बेटा. ये फार्मूला आपको एग्जाम में दिया नहीं होगा. तो प्लीज ये आप लिख लिया करें कि जो फार्मूलाज नहीं दिए होते तो उसको आप पेज पे लिखते जाएं. क्योंकि आप डे डे बिफोर एग्जाम मुझसे पूछोगे तो शायद मेरे माइंड में भी ये चीजें ना हो. ठीक है ना. तो आप इसकी अपनी समरी बनाएं, हर बच्चा अपनी समरी बनाए कि जो फार्मूला एग्जाम में नहीं दिया होता आप उसको भी से लिख लें. ठीक है. जिस तरह आप ये फार्मूला तो आप एक्सपेक्ट ना करें ना कि आपको मिलेगा.
ये वाला। ठीक है। इसी तरह ये वाला फार्मूला जो मैं लिखने लगा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स को आपने लिखना है एक्स प्लस बी ओवर टू होल स्क्वेयर माइनस बी ओवर टू होल स्क्वेयर। ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। जब भी ये लिखा हो ना एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, तो इसको आपने कैसे लिखना है? लाइक दिस। आपने क्या करना है, बी को डिवाइड कर देना है टू पे। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखें भाई, अगर लिखा हो लेट्स सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स, तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा उमर? सर एक्स प्लस टू एक्स होल प्लस स्क्वायर, फोर ओवर टू होल एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस, ओवर टू होल स्क्वायर माइनस फोर ओवर टू होल स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। ठीक है, बस दैट्स इट। एक और बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स सपोज एट एक्स। ठीक है। सर सर एक चीज़ हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जब हमने फोर और टू को टू में किया है, तो अगर फोर्स हमने टू को स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना होगा तो फिर टू टू ज़र फोर और माइनस फोर आएगा ना, लाइक प्लस हाँ हाँ प्लस हाँ हाँ, फोर तो नहीं चलिए। होगा ना। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये आंसर आएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है। इस स्क्वायर सिर्फ टू पे होता है ना। जी जी जी, यू आर राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स प्लस एट ओवर टू होल स्क्वायर माइनस एट ओवर टू होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस एट ओवर टू क्या है, फोर होल स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। ठीक है। Let's suppose if I write x square plus 5x, then in this case ये बनेगा x plus 5 over 2 whole square minus 5 over 2 whole square। आप देखें 5 over 2 तो डिवाइड नहीं होता ना, इसको आपने फ्रैक्शन में ही लिखना है। एंड 5 over 2 square will be 25 over 4। दिस इज योर आंसर। हाँ, ठीक है सर। नेक्स्ट एक और बताता हूँ। अच्छा लेट्स सपोज अगर आपका पढ़ा हो 2x स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर प्लस लेट से 8x है, तो अब क्या करना है? लुक एट दिस फार्मूला। इज देयर एनी नंबर विद एक्स स्क्वायर? नो। नहीं सर। तो ये फार्मूला तो लगता ही तब है जब इधर क्या पढ़ा हो, वन पढ़ा हो। वन। बट इफ यू लुक एट क्वेश्चन फोर, देर इज टू, और देर कैन बी एनी नंबर विद एक्स स्क्वायर, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, जब भी कोई नंबर आता है ना, तो आपने इसे कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है। तो कॉमन। मैं लेता हूँ एक्स स्क्वेयर को, टू को लेता हूँ कॉमन, इन साइड बचेगा एक्स स्क्वेयर, टू को लिया कॉमन तो एट बन जाएगा 4x। ठीक है। तो चलें जी, अब आप क्या करें, इस पे आप दोबारा वही टेक्निक यूज करें। ठीक है। इस पे आप क्या यूज करते थे, जस्ट वही स्टेप सारे यूज करने हैं। तो वो क्या था, एक्स प्लस फोर ओवर टू होल स्क्वेयर प्लस, सॉरी, माइनस फोर ओवर टू होल स्क्वेयर। ठीक है। तो ये आंसर आएगा टू इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर माइनस टू का होल स्क्वेयर। तो ये आंसर आएगा टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर माइनस फोर। सो ये आंसर आएगा, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर माइनस एट। इज देयर एनी कंफ्यूजन उमर? नहीं सर।
2x square minus 12x. So the first step is you must take 2 common. तो inside क्या होगा? x square minus 6x and then अच्छा एक बात मुझे बताने दे, देखिए ये फार्मूला हमने पढ़ा था प्लस के लिए, ऐसे ही है। तो एग्जैक्टली माइनस के लिए भी यही फार्मूला होता है। x स्क्वायर माइनस बी एक्स लिखा हो ना, तो करना पता है क्या होता है? x माइनस बी ओवर 2 का होल स्क्वायर, और बाहर आपने माइनस ही करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो इनसाइड आपने प्लस लिखना है, अगर यहाँ माइनस है तो इनसाइड आपने क्या लिखना है? माइनस लिखना है। याद रहेगी ये बात उमर? जी सर। ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव, इफ यू टेक 2 कॉमन तो इनसाइड क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो चलें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x पे आप वही टेक्निक यूज करेंगे पहले वाली। सो लेट्स अप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x पे पुरानी वाली टेक्निक। तो क्या बनेगा? 2 इंटू, कर लिया आपने? आपने मेरे साथ साथ करना है उमर, ठीक है, इंजॉय नहीं करना आपने। जी सर। एक्स माइनस 6 ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस 6 ओवर 2 होल स्क्वायर। सर आपने जब माइनस किया तो फिर माइनस माइनस 6/2 नहीं होएगा? नहीं, क्या 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 क्या? माइनस माइनस 6/2 होल स्क्वायर नहीं होगा आपने जब दूसरी दफा स्क्वायर माइनस लगाया है? नहीं नहीं, राइट पे। नहीं, मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है सर ये बिल्कुल उसका ठीक हाफ होगा। -6 है ना? ओ सर अगर नहीं उसका नहीं, हाफ -6 है ओ तो भाई फिर माइनस माइनस 6/2 करेंगे। तो 6 ओवर 2 ही किया ना, 3 लिखा है ना, ये देखे ना। सर मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रैकेट से बाहर है हम्म। उसके ब्रैक आपने माइनस सिक्स देखो ओवर टू ना, होल स्क्वायर मैंने किया है। कॉमन लिया, देखे ना, बात सुने ना। देख, अच्छा आप कह रहे हो यहाँ माइनस लिखूं? सर यहाँ पे सिर्फ नंबर को डिवाइड करना होता है, सिर्फ नंबर को डिवाइड करना होता है, ठीक है। सर ब्रैकेट के अंदर माइनस अब लिखेंगे ना? तो माइनस ही लिख, अच्छा इधर आप कह रही हो, इधर जी सर। मैं इधर जी जी। नो, ओके रिमेंबर दैट, नो, ठीक है ना। ये फार्मूला आप देख रहा है, बस आपने बी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फार्मूले के अंदर क्या है? सिर्फ बी ओवर 2 का स्क्वायर, ये नहीं लिखा हुआ कि माइनस बी ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक अच्छा है, ठीक है सर। इवन अगर आप माइनस लिख भी देते हो तो स्क्वायर की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। सर आप श्योर है क्योंकि मैं तो ये तो बनेगा काफी देर से ऐसे कर रहा था। बेटा, वो मैं क्या हो गया, मैं आई एम श्योर अबाउट इट, बट लेकिन मसला ये है ना कि आपके आंसर्स ठीक पता है क्यों आ रहे थे? बताओ क्यों आ रहे थे? हाँ, क्योंकि वो फिर प्लस क्योंकि हो जाता है ऊपर ना। स्क्वायर था ना बेटा, ऊपर स्क्वायर था ना, तो मसला ही नहीं था ना, ठीक है। अच्छा। इससे फर्क नहीं पड़ता, चले मैं आपकी बात भी ठीक मान लूं तो इट डजेंट मैटर ना, ठीक है। चल सही है। 3x स्क्वायर, चलो अब इसकी वर्डिंग लिखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक्सप्रेस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इन p इंटू एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस r। सो अच्छा, आपने ना कंप्लीटिंग स्क्वायर जस्ट इस पे लगाना है, इन दो टर्म्स पे, फॉरगेट अबाउट द लास्ट कांस्टेंट टर्म, ओके।
फॉरगेट अबाउट द लास्ट कांस्टेंट टर्म। तो आपने मुझे बताएं क्या कॉमन लेना है यहां से उमर? व्हाट शुड आई टेक कॉमन फ्रॉम हियर? फिर 3। 3। ओनली फ्रॉम विच टर्म्स? एक्स Only एक्स from the वाली। first two terms. Only from the first two terms. फर्स्ट 2। Okay. Next. X x+2। plus x+1। 2 over 2। 2 whole square minus 2 over 2 whole square. अब देखिए ना, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था सर मेरा मसला ये है कि मेरा ना टाइम कम हो जाता है। ठीक है ना, अब ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना, बेसिकली ये आपने नहीं करना। आपने क्या जी करना है? देखिए मैं तो एज अ टीचर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन साथ मैंने ये क्लियर कर दिया कि आप अच्छे बच्चे हैं, आपने ये काम नहीं करना, आपने डायरेक्ट बेटा ये स्टेप करना है जो मैंने जी ये किया। अब मुझे बताएं, क्या इस स्टेप से आप ये स्टेप नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। कर सकते हैं। मेंटली, मेंटल मैथ्स। अगर आपका इतना मेंटल मैथ्स नहीं है तो फिर आप ए लेवल्स में क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है, तो ये वेस्टेज जी ऑफ टाइम है। बट मैं तो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मेरा करना मजबूरी है, ठीक है ना? तो स्टेप आप स्किप कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये आंसर आएगा 3 इंटू, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट इज योर पी क्यू एंड आर? फिर 3 p हो गया, q1 हो गया और r2 -2 हो गया। आर -2 है, क्यू इज योर 1। ओके, पी इज पी इज 3, क्यू इज 1 एंड आर इज -2। सो 10 -16x -4x²। तो आप क्या करना है, इसको आप इसको पहले लिखेंगे ऑर्डर में ना। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसमें x² वाली टर्म पहले होती है, देन x वाली टर्म एंड देन द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको अरेंज किया हमने। नाउ टेक, व्हाट शुड आई टेक -4। कॉमन? वेरी गुड। सो इनसाइड विल बिकम x² प्लस 4x। सर अगर -x² होता तो फिर हो सकता है या नहीं? अच्छा, ओनली इफ यू आर सेइंग दैट इफ देयर इज ओनली -x², जी अभी कर लेते हैं। माइनस लेना पड़ता है ना। नहीं नहीं, माइनस कॉमन लेंगे ना। जी। ठीक है, अभी हमको एग्जांपल भी देख लेते हैं ऐसी, ठीक है। चलें, तो इन साइड क्या होगा ये? -4 इंटू x +4/2 होल स्क्वायर -4/2 होल स्क्वायर +10। तो दिस विल बी -4 इंटू x +2 का स्क्वायर। 4/2 इज 2, सो 2 का स्क्वायर इज 4। Multiply -4 inside, so -4 into x +2 minus minus plus 16 plus 10, so -4 into 26। अच्छा, दैट्स इट। ठीक है, इज देयर एनी कंफ्यूजन उमर? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 8x -x²। तो इसको आप पहले अरेंज करोगे। अरेंज कैसे करना है? -x² पहले +8x, सो टेक -1 कॉमन। टेक माइनस कॉमन, तो इनसाइड आएगा x² -8x। देन देन x -8/2 होल स्क्वायर -8/2 होल स्क्वायर। उमर आप बेटा रिकमेंड किया करें, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स को ना अपनी क्लास में। कोशिश करें आपका ग्रुप बड़ा बन जाए ना।
देखते हैं सर। तो ये बनेगा जी 16 माइनस इन साइड मल्टीप्लाई करें तो +16, दैट्स इट। इसको नॉर्मली हम ना पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, माइनस नेगेटिव वैल्यू को बाद में। ठीक है, तो दैट्स इट, वी आर डन विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस कल और भी करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के। ओके बेटा, तो मैं आपको ना दो तीन जो रिकॉर्डिंग्स मैंने की है ना क्लासेस की, मैं इंशाल्लाह आज यूट्यूब पे अपलोड करके आपको प्रॉपर उसकी प्लेलिस्ट बना के भेज दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके बेटा उमर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।